Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, in continuation of our discussions regarding concept of pharmacology, in case of this pharmacokinetic pharmacodynamic, now we continue it. Few things which we have not discussed up till now, that is an example of specific chemical structure of a drug. Now, here in this slide, this is specific chemical structure of, for example, penicillin nucleus, penicillin molecule. Here, this one, this is the main part of the molecular structure of penicillin, which is showing the effects. That is the beta-lactamine. And this is the site actually which is being attacked by the enzyme produced by the bacteria. For example, we are calling it as beta-lactamases because it is attacking to the beta-lactam ring. So that is why the name to this E destroying enzyme is given beta-lactamase. And remember, this enzyme is produced by the bacteria itself because bacteria want to protect itself. So it produces a specific enzyme against the molecule of the penicillin itself. So that is why resistance developed for this penicillin of this penicillin against this specific bacteria. So anyhow, this was the one example of only specific chemical structure. Now next is the pK of the drug that we have yet to discuss. Now we know pH is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration, while pKa is the dissociation constant of the drug. Now remember, pKa is constant for every drug. We know pH of the medium may vary, but pK of the drug molecule remains constant. For example, here two examples are aspirin having 3.5 pK, while acetaminophen having pK of 9. We also know acetaminophen, other name is paracetamol, we are using for fever and headache and etc. Anyhow, aspirin having 3.5 means that when it is present in any medium, for example in stomach or intestine, etc., when the pH of the medium is 3.5, at that 3.5, 50% of aspirin will be unionized and 50% will be ionized. And we know from our previous discussion that unionized part is liposoluble and that is absorbable. So that is why 50% of molecule of aspirin at pH 3.5 will be absorbed. For example, if it is lying in the stomach and that particular time due to presence of food or any other thing, if the pH is 3.5 of the stomach, 50% of aspirin will be absorbed because 50% is ionized. Now remember, all acidic drug, for example aspirin is an acidic drug, derivative of salicylic acid. Its name is ethyl salicylic acid. Anyhow, so aspirin, when it is in stomach, and for example if the pH is 2.5, now 1 point less than the pK, we have seen from 50% unionized drug increases up to 90% with the change of only 1. So now when the pH of the stomach is 2.5, 90% of the aspirin will be in unionized and 90% will be absorbed. So if further it is more acidic, for example, now if it is 1.5, it is almost during empty stomach. So at that time, now the unionized ratio will increase up to 99. So now if the pH of the stomach is 1.5, that is difference of 2 now. From 3.5, 1.5, difference of 2. So from pKa, if the difference of 2,
99% of the acidic drug will be unionized and 99% will be absorbed. Acetaminophen is comparatively less acidic and more alkaline, pK 9. So when in intestine the pH is 9, 50% of acetaminophen will be unionized, 55% will be absorbed. But if it is difference between 1, for example, instead of 9, it becomes 10, 99% will be unionized, 90% will be unionized and 90% will be absorbed. If still more difference of 1, for example, instead of 9, now it has become 11, now 99% of acetaminophen will be unionized and absorbed. So home take message is acidic drug in acidic medium, alkaline drugs in alkaline mediums are more unionized, more lipid soluble, and more absorbed. Okay. Now, first pass effect, another terminology used very frequently. First pass effect. First pass, passing for the first time, what effects occur? So what happens when we give orally the drug? After oral or partly even from rectal absorption, we have seen through route of administration, 50% at that time is also passing through portal circulation. So when it is passing through the portal circulation, so it is in the pre-systemic side. At that side, when there is extensive and rapid metabolism of the drug molecule, passing for the first time through the metabolic sites of GIT and liver, that may lead to decrease by how much decrease? Even subtherapeutic. Subtherapeutic means the level is reduced to such an extent that no therapeutic effect is seen. So at that time, we will call it as first pass effect. Passing for the first time through the metabolic side got metabolized extensively and rapidly. So much metabolism occur, so obviously the whole drug molecule will become inactive. No more activity will be there. So bioavailability will be decreased. Okay. So two things: pre-systemic, rapid and extensive metabolism while passing for the first time. Second, decreased bioavailability. And whenever we say decrease means subtherapeutic. Another terminology, volume of distribution. Actually, we must remember this is not the exact, it is an approximate, rough, apparent volume of the body compartments of the fluids that is required to accommodate the drug in the same concentration as it is in the plasma. अच्छा आगे जाके एग्जांपल में समझेंगे. Second definition is the ratio between the drug administered in the body and the drug concentrated in the plasma. That will be known as volume of distribution. अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि एक्चुअल 70 kg जो स्टैंडर्ड में रखा हुआ है पेशेंट का, इनका टोटल बॉडी वाटर अप टू 42 लीटर होता है, जबकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में वेरी फ्रॉम द एक्चुअल. सो दैट इज वाई ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं, एपरेंट या हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होता है. आगे एग्जांपल देखते हैं. दिस इज द एग्जांपल. The volume distribution is the amount of drug in the body and the ratio of the concentration plasma. अब example ये है, we have given 20 units of any drug. इंजेक्शन देने के बाद 20 यूनिट दिए, उसके बाद हमने प्लाज्मा लेवल चेक किए, जो वास्कुलर कंपार्टमेंट से हमें सिर्फ 2 यूनिट मिले, 20 में से बाकी 2 मिले, सिर्फ 18 कहाँ गए? ऑब्वियसली टू द रेशियो, वेसल से बाहर एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट. ठीक है, तो हमने क्या कहा? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 डिवाइड बाई 2. ठीक है, 20 जो दिए, 2 जो ब्लड में मिले,
तो जवाब क्या आया 10। हमने कहा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 10 लीटर। अब ये 10 लीटर अपेरेंटली अभी हमारे 42 लीटर के अंदर अंदर है, ठीक है। एक और एग्जांपल 20 दिए, एक और रखे, लेकिन उसके हमने जो प्लाज्मा में मिले वो 18 मिले, तो बाकी 2 कहाँ गए? वो बॉडी कंपार्टमेंट्स में, अदर में, वास्कुलर कंपार्टमेंट से बाहर। इनका वन डिस्ट्रीब्यूशन कितना जवाब आया 1.1। सो ओनली 1.1 लीटर इज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सेकंड केस। तीसरे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 200 यूनिट्स दिए, सिर्फ 2 यूनिट्स हमें मिले, the remaining 192 units have gone to the extravascular compartments। अब इसका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 100 लीटर। अब ये देखिए कि एक्चुअल बॉडी कंपार्टमेंट्स का टोटल बॉडी वाटर जो फ्लूइड होते हैं अप टू 42 लीटर होते हैं, लेकिन जवाब निकला 100 लीटर, तो ये एक्चुअल तो ना हुए। तो ये कैलकुलेशन से जो निकलता है, इसलिए हम इसको हाइपोथेटिकल या एपरेंट बॉडी वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हाइल डिफाइनिंग इट इज एन एपरेंट और हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली ये अब देखिए कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि पहली डिस्ट्रीब्यूशन तो होती है वास्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर, रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अदर देन द वास्कुलर कंपार्टमेंट्स टू द अदर बॉडी टिश्यू। और वास्कुलर कंपार्टमेंट से तभी वो निकलेगी बाहर if it is less and less plasma protein bound. So affinity binding plasma protein एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। जितनी ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उतनी ज्यादा वो प्लाज्मा के अंदर रहेगी, बड़ी थोड़ी होगी विच विल गो टू टिश्यू। तो इनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा थोड़ा होगा। क्यों? सारी की सारी ड्रग तो वास्कुलर कंपार्टमेंट अंदर रह गई है, सारी की सारी बाउंड फॉर्म में अंदर ही पड़ी हुई है, बड़ी थोड़ी फ्री है और थोड़ी बाहर जाएगी। तो more is the plasma protein bind, less will go to the tissue. So obviously volume distribution of such drug will be less. और बिल्कुल अपोजिट होगा, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत थोड़ी है तो obviously major part will be free and that major part can go to other extravascular compartment, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जितनी बॉडी टिश्यू में जाएगा जाता रहेगा, उसी हिसाब से अभी कैलकुलेशन में देखा, उसी हिसाब से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली बाकी जो हमने बात की थी, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में, लिपिड सॉल्युबिलिटी, कंस्टिट्यूएंट ग्रेडियंट, मॉलिक्यूलर साइज वगैरह वगैरह, पीके आल्सो कि फ्लूइड में कितने परसेंट जो अनआयनाइज्ड है, आयनाइज्ड है। अब आयनाइज्ड तो वास्कुलर कंपार्टमेंट छोड़ नहीं सकता, ओनली अनआयनाइज्ड छोड़ेगा। अफिनिटी फॉर डिफरेंट टिश्यू, बाज टिश्यू लिवर में ज़्यादा जाती हैं, हाथ में फ्यू टू स्केलेटल मसल, फ्यू टू फैटी टिश्यू, तो बहुत से एग्जांपल्स हैं। कुछ पेशेंट के फैक्टर भी जिनमें फैट ज़्यादा है, ठीक है, उस हिसाब से एज के हिसाब से हर एक में अपने हिसाब से फैट की और सेक्स के हवाले से, ओबेसिटी के हवाले से फैटी टिश्यू कम या ज़्यादा होगी। तो जिनकी अफिनिटी फैट में ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चले जाएंगे, लेस होगी लेस जाएंगे। फिर टिश्यू परफ्यूजन, जिन पे परफ्यूजन ज़्यादा है तो ब्लड उतना ही उनको ज़्यादा लेके जाएगा, प्रोवाइडेड बाकी फैक्टर हैं, ठीक है, लेस प्लाज्मा बाइंडिंग है और अनआयनाइजर वगैरह वगैरह। सिमिलरली नॉर्मल फ्लूइड के अलावा एक्स्ट्रा डिजीज फ्लूइड मौजूद है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा एफ्यूजन हो गई है, टिश्यू में चली गई ज़्यादा से ज़्यादा। कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में हमने देखा है बॉडी वाटर कंपार्टमेंट्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मौसम कंपार्टमेंट से फ्लूइड का इकट्ठा हो जाता है। यूदीमिया में, सिरोसिस में, अडीमा डेवलप बहुत ज़्यादा, जितना अडीमा, जितना फ्लूइड इकट्ठा होता है टिश्यू में उतनी ज़्यादा उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़्यादा अवेलेबल है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट बढ़ जाएगा, ठीक है। So when the drug has a high plasma protein binding, volume distribution, ये VD जो इसका ये एक सिंबल है VD, विद लो, ठीक है, और अपोजिट हो जाएगा जबकि जो हमने बात की। एक और लफ्ज आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगरचे पहले लफ्ज बोला था लेकिन मेरा ख्याल नहीं याद होगा, दोबारा बोलते हैं कि ये भी कॉमनली पास क्वेश्चन। एग्जाम्पल जैसे हमने थायपेंटॉल
ये हमने एग्जांपल दी थी बारबिटरेट में से अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में मिसाल दी थी कि इसकी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कि पहली डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड और टिश्यू में हुई, क्योंकि ये रिवर्सेबल मूवमेंट टू द टिश्यू होती है। अगर वो रैपिडली वापस आ जाए और जिन जगहों पे साइट ऑफ एक्शन थी उन पे जल्दी कम हो जाए, इफेक्ट जल्दी कम हो जाएगा। ठीक है, मसलन ब्रेन में जाते हैं ये दोनों, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर जल्दी वापस आ जाती है टू दी वास्कुलर कंपार्टमेंट, उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल भी हैं कि ब्रेन द्वारा में अर्ली एंट्रेंस होती है लेकिन रैपिड एग्जिट भी हो जाती है। फैटी टिश्यू में इजी एंट्रेंस है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होती है, और अदर टिश्यू में फ्लो डिपेंडेंट एंट्रेंस होती है और बाकी फैक्टर जो पड़े वो भी, और आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट होती है। अकॉर्डिंगली रीडिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ टिश्यू से मुख्तलिफ अंदाज में होती है। ब्रेन में जल्दी, फैटी टिश्यू में उससे कम, और बाकी टिश्यू में डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यू उससे कम। अदर टर्मिनोलॉजीज, एंजाइम इंडक्शन, इंड्यूस करना, एक्सेलरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। We have seen the metabolism is dependent upon activity of the enzyme. So if the activity is rapid or there is increased activity, the most common example of enzyme is cytochrome P450. सबसे important नाम ये है क्योंकि majority of the drugs are being metabolized by this system, cytochrome P450. Anyhow, अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ गई है उतना ही ज्यादा मेटाबॉलिज्म रैपिडली होगा। ठीक है, तो या तो उसकी एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ गई है, और या जो डिग्रेडेशन होती है खास टाइम के बाद वो कम हो गई है, तो उतनी ज़्यादा देर तक रहेगा, उतना ज़्यादा देर तक वो अपना एक्टिविटी शो करता रहेगा। एनी हो, इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से वो ड्रग जल्दी इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, सो ड्यू दे मे इफेक्ट टू द ड्रग इटसेल्फ। सो एंजाइम इंडक्शन से रिमेंबर मैसेज क्या है कि एंजाइम इंडक्शन से जिन जिन ड्रग का एंजाइम इंडक्शन हो रही है उनका मेटाबॉलिज्म रैपिड होगा, वो जल्दी इनएक्टिव हो जाएगी। अपोजिट हो जाएगा एंजाइम इनहिबिशन में कि अब स्लो हो गया मेटाबॉलिज्म, ज़्यादा टाइम के बाद मेटाबॉलिज्म होगा, उतनी देर तक वो एक्टिव रहेगी। तो अगर डोज वक्त पे हमने रिपीट कर दी और पिछली ड्रग भी अभी पूरी तरह मेटाबोलाइज नहीं हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग अकोमोलेट हो जाएगी। इनमें टॉक्सिक इफेक्ट जल्दी ज़्यादा मिलती है। इंडक्शन में एक्टिविटी जल्दी खत्म हो जाती है, इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाता है, तो हमें बार बार देनी पड़ेगी। एंजाइम इनहिबिशन में देर तक ड्रग रहती है, टॉक्सिक इफेक्ट जल्दी लेवल मिल जाते हैं, टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ऐसे केस में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, डोज शेड्यूल में या कोई और मसला हल करना पड़ेगा। अच्छा, एक और एलिमिनेशन तो पड़ी थी हमने ना, जब इनएक्टिव हो जाना उसके जाके नो मोर एक्टिव अवेलेबिलिटी। अच्छा, रेट ऑफ एलिमिनेशन अब तक हमने दो किस्म देखे, उनको हमने अपने हिसाब से नाम दिया, पढ़ा हुआ आपने बायोकेमिस्ट्री में, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। So zero order B, the rate of elimination of the drug is independent of the plasma concentration or amount. कितनी है उससे कोई नहीं, सिर्फ constant amount of the drug is eliminated per unit time, per second, per minute, per hour, per 24 hour वगैरह में a constant amount is metabolized। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर होगी। अभी तक तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हम आगे जाके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एस्प्रिन अल्कोहल है और एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है फेनिटाइन। अदरवाइज ऑल अदर जो एग्जांपल हैं वो जीरो ऑर्डर से नहीं होती, ये फर्स्ट ऑर्डर से होती है। इसमें अमाउंट नहीं, कांस्टेंट फ्रैक्शन, 1%, 10%, 50%, एक परसेंटेज वो ड्रग की जो है वो एलिमिनेट हो रही है पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, पर मिनट्स, पर 24 आवर वगैरह वगैरह, पर आवर एक्स्ट्रा जो भी है यूनिट टाइम रखा है उस हिसाब से। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग वो फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर का फायदा क्या होता है, जितनी मर्जी ड्रग की अब डोज बढ़ जाए उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है ना वो उतना रहेगा। हाँ जाहिर है हर एक की टोटल क्वांटिटी मुख्तलिफ होगी, 1 मिलीग्राम की और होगी, 10 का हो
मसलन मैं कहता हूँ 50% जी रेट ऑफ एलिमिनेशन है, तो 1 मिलीग्राम का 50% और होगा, 10 मिलीग्राम का 50% और होगा, 100 का और होगा, 1000 का और होगा। सो होगा मुख्तलिफ, लेकिन रेशो वही रहेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। अनदर टर्मिनोलॉजी क्लियरेंस। अच्छा, अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब कंफ्यूजन डेवलप हो जाए। अभी तक आपने एक एक्सक्रीशन देखा, वो होता है जिसम से निकल जाने का नाम, एलिमिनेशन ड्रग का इनएक्टिव होने का नाम। क्लियरेंस क्या है? दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ एलिमिनेशन कह लीजिए, ठीक है, कि पर यूनिट टाइम में कितने परसेंट एलिमिनेट हुई, कितने वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड में से। So it is the volume of the blood or the body fluids which is cleared of the drug per unit time. एक given time में वो मखसूस blood या body fluid में से कितने लीटर में से कितने परसेंट वो जाना वो क्लियर ऑफ हो गई या एलिमिनेट हो गई, ठीक है। याद रखिए ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे क्रिएटिनिन क्लियरेंस हमने पढ़ी थी फिजियोलॉजी में, उसी तरह ड्रग की क्लियरेंस हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ जो है एलिमिनेशन को या क्लियरेंस वगैरह को अगर आपने समझना है तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस को एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिए ताकि कंसेप्ट आपका ड्रग क्लियरेंस का वाजे हो जाए। ये डायग्रामेटिकली क्लियरेंस मसला हम होते देखिए, ओरल डोज दे रहे हैं, कुछ का मेटाबॉलिज्म गट के अंदर होता है, वो गट में क्लियर हो गया, बाकी एब्जॉर्ब है ब्लड में चलेगी थ्रू पोर्टल लिवर में गई, जब लिवर में गई मेटाबॉलिज्म होके लिवर में क्लियर होगी, जो नई मेटाबॉलिज्म एलिमिनेट नहीं हुई वो सिस्टमिक रूप से चली जाती है। आईवी तो वैसे ही 100% हम चले जाते हैं। फिर बाकी बॉडी टिश्यू में, कोई किडनी में या फैटी टिश्यू में वगैरह, जहाँ जहाँ जिसको जो एंजाइम होंगे अगर वो एलिमिनेट हो जाती हैं, वो रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो क्लियरेंस कहलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बात करता हम टोटल बॉडी क्लियरेंस को सम ऑफ दी ऑल ऑर्गन क्लियरेंस, लिवर में कितनी हुई, किडनी में कितनी हुई, प्लाज्मा ब्लड में से कितनी हुई, अदर इन सबको इकट्ठा कर लो तो टोटल बॉडी क्लियरेंस निकल आएगी। Another important thing is half life. लाइफ किसकी? ड्रग की। ड्रग क्या है? हमने कहा था जो एक्टिविटी शो करती है, जो एक्टिविटी शो ना करे हम उसको ड्रग नहीं कहते, ठीक है। तो हाफ लाइफ, आधी जिंदगी ड्रग की जब तक वो एक्टिव है, ठीक है, लेकिन टेक्निकली हम डिफाइन करते हैं तो एब्रीविएशन सिंबल होता है टी हाफ, ठीक है ना, ये एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक सिंबल है, टी हाफ मीन्स हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। सो ऑब्वियसली इट इज टाइम, जब भी शुरू करना है टाइम से शुरू करना है, डोंट स्टार्ट विद द कंसंट्रेशन, नो नो नो, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। इट्स द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ ड्रग टू रिड्यूस इट्स अमाउंट बाय 50% एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस लेवल। कोई रेफरेंस एक टाइम में अपलोड कर लें कि चलो जी ये अब से शुरू किया, अब जितने लेवल है नोट कर लिया, हमने सैंपल लिया वो नोट कर लिया, लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ गई जी फलां वक्त में इतने लेवल थे। जब उस लेवल से 50% जितना टाइम लगेगा वो उसकी हाफ लाइफ होगी, ठीक है। ये आगे जाके बात का कांस्टेंट फ्यूजन में भी हम चेक करते हैं। बहरहाल एंड आप सिर्फ यहाँ तक याद कर लें। एक एग्जांपल, अब ये डायग्रामेटिक देखते हैं, जब हमने फॉर एग्जांपल हेयर, ठीक है, ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 माइक्रोग्राम पर, ये माइक्रोग्राम पर एमएल का ये यूनिट दिया हमने, 4 माइक्रोग्राम आईवी दी हमने, तो 100% आईवी चली जाती है, तो एकदम फौरन लेवल कम हो जाएंगे, क्यों? उस वक्त फौरन वो पूरे ब्लड में फैल जाएगी, तो तब पूरे ब्लड में फैल कर डाइल्यूट हो जाएगी। अब जब सैंपल लेंगे 4 नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, प्लस अदर बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। हद तक एक लेवल आता है जब कांस्टेंट लेवल हो जाती है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे एक्चुअली उसको मेजर करना। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, 1 पे आके यानी कि आप अब यहाँ पे अब ये एलिमिनेट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इनएक्टिव हो रही है, आइदर थ्रू मेटाबॉलिज्म और थ्रू एक्सक्रीशन। हमने पीछे पढ़ा ना कि एलिमिनेशन
occurs either through metabolism or through excretion. Anyhow, ये एलिमिनेशन फेज होता है. अब ये ग्रेजुअल डिक्रीज करेगी, बिल्कुल कांस्टेंट. अब 1 से इसका हाफ होगा 0.5, ये 0.5. टाइम कितना लगा, फर्स्ट का 12 आवर्स, ये टाइम है 12 आवर्स. हमने कहा इसकी हाफ लाइफ 12 आवर है. अब 0.5 का हाफ क्या होगा, 0.25 यहाँ तक. ठीक है, टोटल तो 24 आवर है, लेकिन यहाँ से 0.5 से 0.25 तक 12 से 24, 12 का फर्क रहा. तो 12 आवर हाफ लाइफ विल रिमेन कांस्टेंट. ये जो पीछे में एग्जांपल देखें ना, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, उसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है, याद रखें. टिपिकल उसमें एक करेक्टरिस्टिक होगी, हाफ लाइफ विल रिमेन सेम, जो जिसकी भी है. याद रखें हर ट्रक की मुख्तलिफ है, किसी की फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स. एग्जाम्पल आएगी आगे. ठीक है. एनीहाउ, अब 0.25 का हाफ 0.125, ये अगले 12 घंटे 24 से 36 आवर तक है 12. फर्दर आगे फिर 12. सो 12 फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ है एक जितनी 12 आवर. अब एक एग्जांपल देखते हैं. यहां से हम दे रहे हैं ओरल, आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ रहे हैं, देते एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, लेवल बढ़े जा रहे हैं, हत्ता कि एक कांस्टेंट लेवल मिल जाएंगे. ठीक है. यहाँ से आईवी हदी 100% से कम होती जैसे पीछे भी दिखा था, 100 से 50% आहिस्ता कम होते फिर खत्म हो जाएगी. दोनों के ग्राफ अपने अपने होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आईवी देख लिया हमने, 100% दिया, 50% लिखा. ठीक है. ये इसकी हाफ लाइफ होगी. फर्स्ट यहाँ पे एक और ट्रक थी, इसकी हाफ लाइफ 1 आवर थी. ठीक है. यह हाफ लाइफ के लिए, फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए, अब आवर्स को छोड़ दें हम, जिसके जितने भी है, लेकिन एक हाफ लाइफ होगी 50% रिड्यूस. 50 का हाफ 25, 2 हाफ लाइफ होगी, 3, 4, हत्ता के कम होती जाएगी. तो हाफ लाइफ इज टाइम टेकन टू डिक्रीज 50% लेवल्स. ठीक है. ये कम होते. अब अगर अटेन में जाना, ऊपर भी चले जाए ऐसे. यस. ठीक है. कि 100% तक पहुंचते 50% तक पहुंचे कितना टाइम लगा, उससे आगे अब ऊपर जाएगा, अब नीचे नहीं आएगा, लेकिन 50 का हाफ और 75 हो जाएगा, अगली हाफ लाइफ बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है. तो बात का कांस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम एलिमिनेशन में जो डिटरमिन करते हैं. तो अटेरिक प्लाज्मा लेवल या एलिमेंटिक प्लाज्मा, दोनों में. ठीक. तो फर्स्ट डोज दी, सेकंड डोज दी, थर्ड डोज, ताकि कांस्टेंट स्टेडी स्टेट मिल गई विद ए फिक्स डोज, आहिस्ता से मिलती जाएगी. अब यहाँ पे थोड़ी और भी मैथमेटिक समझ लें. पहली हाफ लाइफ 50%, सेकेंड हाफ लाइफ 50 पहली, और 50 का 50, 25 दोनों मिलकर 75% टोटल, ये एलिमिनेट हो गई. थर्ड हाफ लाइफ में पहला 50, अगला 25 का हाफ 12.5, तो टोटल हो गई 87. तो आप ये देखें, उसको ऐड करते चले जाएं तो ग्रेजुअली आप देखें कि फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है. आमतौर पे हम फिफ्थ हाफ लाइफ को ले लेते हैं 100% अदरवाइज, लेकिन प्रैक्टिकली हम आगे जाएंगे तो आप देखिए 9 हाफ लाइफ चाहिए, तकरीबन ऑलमोस्ट 99.6 तक जाते. पहले में 50, फिर 25, 12.5, 6.25, उसका आधा, उसका हाफ, सबको ऐड करते करते ये टोटल निकलाएगा. तो मुकम्मल तौर पे एक्चुअली निकलने के लिए तकरीबन 9 हाफ लाइफ चाहिए, लेकिन आमतौर पर हम 5 तक कहते हैं कांस्टेंट मिल गई. ठीक है. हाफ लाइफ का जो एक फार्मूला है वो ये है, हाफ लाइफ इज 0.693, जिसको आमतौर पे 0.7 भी ले लेते हैं रफ करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्लियरेंस. ये टोटल है. ये फिगर कहाँ से है? ये 50% में देखा था ना, ये अटेन हो रहा है या फॉल हो रहा है. ठीक है. तो ये 2 फोल्ड कहते हैं ना, उसका लॉग है एक्चुअली. लॉग ऑफ 2 इज 0.693, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.7 लेते हैं. ठीक है.
तो उसको मल्टीप्लाई किया। अब ये देखिए, जितना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उतनी हाफ लाइफ लंबी होगी, जितनी क्लियरेंस ज़्यादा होगी उतनी छोटी होगी। इनवर्सल प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो अगर पूछे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हाफ लाइफ, मेनली दो, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस। फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के अपने फैक्टर पीछे हम पढ़े, हमने प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और लिपिड सोलबिलिटी वगैरह वगैरह भी पीछे आप देख लीजिए। ये कुछ एग्जांपल है हाफ लाइफ की। फ्यू सेकंड ओनली एडिनोसिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता 0.25 जो 15 मिनट बनते हैं, 0.25 आवर है ना। सेफेलेक्सिन ये थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन का, हाइड्रोलाजीन ये ब्लड प्रेशर में डायलेटर है, 1 घंटा लगेगी। अब कुछ लॉन्ग हाफ लाइफ एग्जाम्पल, अमिटरॉन आप पढ़ेंगे जाके एंटी एडमिट ड्रग में 80 to 120 डेज, यानी कि इतने दुनिया के बाद सिर्फ 50% कम होगी एक हाफ लाइफ से, ठीक, अगर दी हुई हमने ड्रग। मजीद इतने लगेंगे तो फिर फर्दर उसका 50 कम होगा, यानी कि टोटल 75। अब हम पिछले कम से कम 5 हाफ लाइफ। तो अब ये देखिए 120 डेज कितने महीने बन गए, 4 मंथ, ठीक है। तो अब ये देखिए 5 हाफ लाइफ कितने माह बन गए, 20 मंथ, ठीक है। तो अब ये देखिए तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा लग गया इसको पूरी तरह निकलते। तो ये एक दफ़ा अंदर गई हुई बड़ी लंबे अर्से तक बॉडी में स्टे करती, क्योंकि इसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लंबा है। मुख्तलिफ रीज़न है, वहाँ बैठी रहती है, नहीं निकलती है, फिरती है वगैरह वगैरह। या पढ़ेगा मीटर ऑन को फिर समझ आ जाएगी। क्लोरोकिन ये एंटी मलेरियल है, 214 आवर्स। डाइजॉक्सिन हमने पढ़ी लिया, नॉर्मल 36 to 50 आवर्स। फ्लॉक्सिटिन ये भी हम पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट वगैरह में, 53 आवर्स। मिप्रामीन ये भी एंटी डिप्रेसेंट है, 18। जस्ट एग्जाम्पल है कि फ्यू सेकंड से फ्यू आवर्स तक बातों की लंबी भी। नाउ स्टडी स्टेज, here actually drug intake is equal to drug eliminated during dosage term। चलिए आगे डायग्राम से समझते हैं। अब ड्रग कंसंट्रेशन प्लाज्मा एट स्टेडी स्टेट कब होगी, व्हेन ड्रग कंसंट्रेशन एंटरिंग इज इक्वल टू ड्रग कंसंट्रेशन लीविंग। जैसे किसी घर में अगर बैंक में पड़े हुए पैसे न ज़्यादा हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जितनी भी अर्निंग हो रही है उतनी अखराजात हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ड्रग में जितनी हम ड्रग एंटर कर रहे हैं, दे रहे हैं, उतनी एलिमिनेट हो जा रही है। अंदर जो कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक। ये मोमेंट तब होती है जब एक लेवल अचीव करने के बाद हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करके इतनी मेंटेनेंस डोज देते हैं जिससे स्टेडी स्टेट जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसका नाम ही मेंटेनेंस डोज रखा हुआ है कि दिस मेंटेनेंस डोज मेंटेन द स्टेडी स्टेट। तो मेंटेनेंस डोज कौन सी होगी, विच मेंटेन द स्टेडी स्टेट, ठीक है। थैंक यू।